جب تو روزہ رکھے تو رائے کاروں کی مانند اپنا چہرہ اداس نہ بنا، کیونکہ وہ منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ انہیں روزہ دار جانیں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ اور جب تم روزہ رکھے تو سر پر تیل لگا اور منہ دھو، تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو کشیدگی میں تجھے دیکھتا ہے روزہ دار جانے، اور تیرا باپ جو کشیدگی میں تجھے دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ جن پاک کے وسیلہ سے ہم سب کے گناہ معاف ہوں۔ MC تیری ستائش ہو۔ خداوند یسوع مسیح میں میرے بہنوں بھائیوں پیارے بچوں بزرگوں آپ سب کو خداوند کی سلامتی حاصل ہو۔ آپ کو بھی حاصل ہو۔ آج کے پاک کلام میں سے آج ہم نے 3 تلاوتیں پڑھی ہیں۔ پہلی تلاوت جو یوئیل نبی کی کتاب میں سے ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا بندہ یوئیل نبی اپنے ملک میں منادی کرواتا ہے کہ روزے کی منادی کی جائے، روزہ رکھا جائے، تمام ملک جو ہے وہ روزہ رکھے، تاکہ جو ہمارے ملک میں عذاب آنے والا ہے، ہمارا ملک تباہ ہونے والا ہے، خداوند اس بلا کو ہم سے ٹل جائے۔ وہ اس لیے روزہ رکھوانا چاہتا ہے، اور کیا کہتا ہے کہ جو دولہا دلہن ہے اپنے کمرے سے باہر نکل آئے، اور بزرگوں کو بلاؤ، عورتوں کو بلاؤ، مردوں کو بلاؤ، بچوں کو بلاؤ، اکٹھے کرو اور روزے کی منادی کرو، مقدس محفلیں سجاؤ کہ عبادت کا اہتمام کرو، لوگوں کو جمع کرو، تاکہ وہ خداوند کے پاک کلام میں سے سنیں اور اپنی زندگیوں کو خدا کے آگے اندیل دیں۔ اور دوسری تلاوت میں ہم سنتے ہیں کہ خدا کا بندہ یونس نبی جو ہوتا ہے وہ خدا کے پلان کے مطابق چلنا چاہتا ہے۔ خدا اسے بھیجنا چاہتا ہے کسی اور ملک میں، اور وہ کیا کرتا ہے؟ کسی اور ملک میں جانا چاہتا ہے۔ اور خدا کیا کرتا ہے کہ اسے وہ جس جگہ جانا چاہتا ہے وہ لوگ یہودی نہیں ہیں، وہ یہودیوں کا ملک نہیں ہے۔ اور جو یونس نبی ہے وہ یہودی ہے، وہ کہتا ہے کہ میں خداوند اس ملک میں نہیں جانا چاہتا، اور خداوند اسے کہتا ہے کہ تو اس ملک میں جا اور منادی کر کہ وہ توبہ کریں تاکہ یہ ملک بچ جائے۔ اور اس کا مطلب ہے خدا سب سے پیار ہے، خدا پوری دنیا کے لوگوں کو پیار ہے۔ اور یونس نبی کہتا ہے اپنے تائیں بڑا بنتا ہے کہ وہ تو یہودی نہیں ہے، وہ تو خدا کو ماننے والے نہیں ہے، میں نہیں ادھر جاؤں گا، میں اس ملک میں نہیں جاؤں گا۔ اور خدا کا پلان ایسا ہوتا ہے کہ وہ جہاز پہ بیٹھ کے کسی اور ملک کی طرف جانا چاہتا ہے، اور لیکن اتنی لہریں آتی ہیں کہ جہاز ڈوبنے لگتا ہے، اور خدا کے بندے کہتے ہیں کہ کوئی ہم میں سے ایسا بندہ ہے جو خدا کی مرضی کے خلاف چل رہا ہے، اور وہ قرعہ ڈالتے ہیں، سارے لوگوں کے نام لکھ کے قرعہ ڈالتے ہیں، اور جو قرعہ نکلتا ہے وہ یونس نبی کا ہوتا ہے۔ اور وہ کیا کرتے ہیں کہ یونس نبی کو کہتے ہیں کہ تو ایسا بندہ ہے جو خدا کی مرضی کے خلاف چل رہا ہے، تو ایسا کریں گے ہم اسے سمندر میں پھینک دیں گے تاکہ یہ جو لہریں ہیں، یہ جو طوفان ہے تھم جائے۔ اور وہ کیا کرتے ہیں؟ یونس نبی کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیتے ہیں، اور خدا نے ایک بڑی مچھلی کا اہتمام کیا ہوتا ہے اور وہ اسے نکل لیتی ہے۔ اور خدا کا بندہ یونس نبی جب مچھلی کے پیٹ میں کتنے دن ٹھہرتا ہے جی؟ 3 دن۔ 3 دن ٹھہرتا ہے۔ 3 دن کا اس نے روزہ رکھ لیا۔ کتنے دن کا روزہ رکھ لیا؟ 3 دن وہ نہ کچھ کھاتا ہے نہ کچھ پیتا ہے، اور خدا کے آگے التجا کرتا ہے، خداوند میں بہت زیادہ گہرائی میں ہوں، غار میں اسفل میں ہوں، جہاں پر موت ہی موت ہے، اور تم نے مجھے کہاں بھیج دیا ہے؟ اور خدا تمام ہوتا ہے، 3 دن کے بعد مچھلی خشکی کے آگ کے اسے نکل دیتی ہے، اور وہ اسی ملک میں آ جاتا ہے جہاں خدا اسے بھیجنا چاہتا ہے۔ پھر وہ منادی کرتا ہے، روزے کا منادی کرتا ہے کہ تمام لوگ روزہ رکھیں اور خداوند کے آگے سردخو ہوں، اور خداوند کے آگے گریہ زاری کریں۔ گریہ زاری کا مطلب ہوتا ہے رو رو کے دعا کرنا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں، ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہماری دعائیں کئی مرتبہ نہیں پوری ہوتی کیونکہ ہمیں خداوند کے طریقے سے نہیں مانتے۔ خداوند کہتا ہے
जब आप दुआ करते हो तो पूरी ताकत, पूरे जोश और पूरी अकल के साथ। सबसे बड़ा हुक्म और सबसे पहला हुक्म भी यही है कि खुदावंद अपने खुदा से अपने पूरे दिल, अपनी पूरी जान और अपनी पूरी ताकत से प्यार। और जब हम अपने पूरे दिल, अपनी पूरी जान और अपनी पूरी ताकत के साथ खुदावंद के आगे इल्तिजा करेंगे तो हमारी दुआएं ज़रूर खुदावंद के हज़ूर पेश होंगी। और अगर हम दिल से नहीं मांगते, रूह से नहीं मांगते, खुदा का बंदा पौलुस कहता है जब आप दुआ करते हो तो खुदा का रूह आपके साथ अटैच होता है और खुदा का रूह आहें भर भर के, आंसू बहा बहा के आपकी दुआएं लेके जाता है। और अगर हम दुआ में हैं, आज के दिन ख़ास तौर पर हम देखते हैं मुक़द्दस मत्ती की इंजील में रोज़े के मुताबिक बताता है वो कि वो कहता है कि जब तू रोज़ा रखे तो कैसा रोज़ा रख, अपने सर में तेल डाल, अपना मुंह धो और दरवाज़ा बंद कर और पोशीदगी में दुआ कर और गैर कौमों की तरह अपने चेहरे को उदास ना बना। जिस तरह हम देखते हैं बहुत सारे लोग जब रोज़ा, ओ भाई मेरा रोज़ा, मेरे को काम ना करता, ऐसा रोज़ा खुदा को पसंद नहीं, ये भूखा रोज़ा है। बुल्ले शाह कहता है चख नमाजा ते पकड़ रोज़े, चख नमाजा होंगे लोगों को दहाड़ वास्ते बुलाओ, चख नमाजा ते पकड़ रोज़े ते कलमे फिर गई सियाई। वो जो तो कलमा पढ़ता था ना उसके ऊपर सारी शाही, वो जो भूखे तो रोज़े रखता था ना वो खुदा को नहीं पसंद। चख नमाजा ते पकड़ रोज़े ते कलमे फिर गई स्याही, बुल्ले शाह शानदारों मिलिया भूली फिरने लगा। एवं इधर उधर फिरना पे, खुदा तो तेरे अंदर ही, खुदा आपके अंदर है, खुदा का रूह आपके अंदर है। और खुदा का, क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा बदन खुदा की है और खुदा का रूह तुम में सुकूनत करता है। अगर तुम अपने बदनों को बर्बाद करते हो तो खुदा की हैकल को बर्बाद। ये जो हमारा बदन है ये खुदा की जगह है, खुदा का घर है और हमने खुदा के घर को ख़राब नहीं करना बल्कि इसे और अच्छा बनाना है ताकि खुदा का रूह हमारे साथ ही चले। और हमें रोज़ों के दिनों में रियाजत करनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा दुआ में ठहरना चाहिए, दिखाने के लिए नहीं बल्कि खुदा के साथ लिंक बनाने के लिए। जब हम रोज़ा रखते हैं हमारी सेहत कमज़ोर होती है, हम कमज़ोर होते जाते हैं, लेकिन रूहानी तौर पे हम लोग बढ़ते जाते हैं, रूहानी तौर पर हमारी तरक्की हो जाती है, हमारा खुदा के साथ मिलाप होता है, हम खुदा के और ज़्यादा करीब हो जाते हैं और ज़्यादा खुदा के साथ अटैच हो जाते हैं। एक जगह पे बाइबल का जिक्र है कि खुदावंद के शागिर्दों के पास एक बंदा अपने बेटे को लाता है और वो उसे सही नहीं कर पाते और वो यीशु के पास शिकायत लेके आता है, खुदावंद मैं तेरे शागिर्दों के पास इसे लाया था लेकिन तेरे शागिर्द इसे सही नहीं कर सकते। और यीशु उस बच्चे पे दुआ करता है और वो बच्चा सही हो जाता है। और यीशु के शागिर्द से पूछते हैं, खुदावंद हम क्यों नहीं उसे निकाल सकते, उस बदरू को हम क्यों नहीं निकाल सकते? तो यीशु कहता है ये बदरू रोज़े और दुआ से जाती है। जब हम रोज़ा और दुआ करते हैं तब हमारे में रूहानी ताकत आती है, हम खुदा में मजबूत होते हैं और ज़्यादा मजबूत है, रूहानी तौर पे मजबूत होते जाते हैं। जिस्मानी तौर पर हम कमज़ोर होते हैं, रूहानी तौर पर हम बढ़ते जाते हैं। तो बहनों भाइयों, इस रोज़ों में हमें सिर्फ़ और सिर्फ अपने आप को खुदावंद के साथ मिलाने की ज़रूरत है, खुदावंद के साथ चलने की ज़रूरत है। इन रोज़ों के अयाम में हमारे लिए बहुत ही अच्छा मौका है कि हम अपने गुनाहों से तौबा करें और अपने अंदर जो कमियां कमज़ोरियां हमारे में हैं उसको दूर करें। और जो लोग हमसे नाराज़ हैं कोशिश करें कि इन रोज़ों के अयाम में उनसे मिलें, क्योंकि खुदावंद कहता है कि तेरा भाई अगर तू कुर्बान गाह पे कुर्बानी चढ़ा रहा है और तुझे याद आए कि तेरा भाई नाराज़ है, अपनी कुर्बानी को छोड़ और अपने भाई से मिलाप कर। खुदावंद हम सबको मिलाना चाहता है। यीशु ने हर एक को मिलाया है, यीशु मोहब्बत है। यीशु ने कहा कि मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूँ। कोई बता सकता है कौन सा यीशु ने नया हुक्म दिया? एक दूसरे से मोहब्बत करो। सब एक दूसरे से मोहब्बत। जब हम एक दूसरे से मोहब्बत करेंगे तो हमें कोई भी बुरा नहीं लगेगा। जब हम अपने बच्चे से मोहब्बत करते हैं, वो जो मर्जी करता है, जिसका साडा बच्चा बड़ा अच्छा है, साडा बच्चा बड़ा सोना है, तो कभी कर ही नहीं सकते क्योंकि हम उसे मोहब्बत करते, प्यार है हमारा उसके साथ। तो खुदा हमें ऐसा प्यार चाहता है कि हम भी एक दूसरे से करें। अगर हम एक दूसरे को माफ़ करते हैं, हमें माफ़ करने वाले बनना है।
खुदावंद हमें कहता है कि तुम रहम दिल बनो। जब हम में रहम आएगा तो हम किसी बंदे को देखेंगे, हम रहम दिल होंगे तो हमारे में खुदा का रूह है, हम रहम करते हैं। अगर हमारे में खुदा का रूह नहीं है तो हम किसी पे रहम ही नहीं कर सकते। हमें रहम करने की ज़रूरत है, हमें अपने आप को छोटा करने की ज़रूरत है और दूसरों को अपने साथ मिलाने की ज़रूरत है। जो लोग देखें, जो ज़माने से रद्द किए हुए हैं उनसे मिलना चाहिए। अपने बहन भाइयों से जो हमसे नाराज़ हैं उनसे मेल कर लें। ये मेल का, ये मलाप का रोज़ा है, ये माफ़ करने का रोज़ा है, एक दूसरे को कबूल करने का रोज़ा नाम है। ये ज़रूरी नहीं कि हम भूखे रह के जी रोज़ा रखे हैं, भूखे हैं, शाम हुआ ना बड़ा कुछ खाना। आपका रोज़ा ये होना चाहिए कि आपकी शख्सी ज़िंदगी में यसू नज़र आए। वो जिसको जो मानता है ना उसमें वो नज़र आना चाहिए कि मैं उसका बंदा हूँ। आपकी यसू हमारा रोल मॉडल है। हमने यसू को देखता है। यसू माफ़ करता था। यसू तो ये कहता था जो तुम्हारे एक गाल पे तमाचा मारे दूसरा गाल भी उसकी तरफ। और इससे बढ़कर प्यार कोई नहीं करता कि यसू ने सलीब पर लटके हुए उन लोगों के लिए कहा कि अब आप इनको माफ़ कर दें क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या है। और हमें भी खुदावंद ऐसा करने की तौफीक दे। आमीन। आमीन। आज हम अपने ईमान का इकरार करेंगे, रसूलों का अकीदा पढ़ेंगे। रसूलों का अकीदा